بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کسی عورت سے اس کے عورت ہونے کی وجہ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اللہ ان اعمال اور عادتوں سے ناراض ہوتا ہے جو اس کی نافرمانی پر آدھارت ہوں، اور یہ اصول مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ لیکن جب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کن عورتوں سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ یہاں ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو بار بار گناہ پر اڑی رہتی ہیں، توبہ کو ہلکا سمجھتی ہیں اور اللہ کی حدوں کا مذاق بناتی ہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار جینڈر نہیں بلکہ تقوی ہے۔ اسی لیے جو عورت تقوی چھوڑ دیتی ہے وہی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ سب سے پہلے وہ عورت جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ ہے جو شرک کرتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کے حق میں شریک ٹھہراتی ہے، چاہے وہ تعویذ کو سب کچھ سمجھ لینا ہو، مزاروں سے ایسی امیدیں لگانا ہو جو صرف اللہ سے جڑی ہوں، یا نظر بد اور قسمت کو انسانوں کے ہاتھ میں سمجھنا ہو۔ قرآن فرماتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ اسے تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ دوسری وہ عورت ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتی ہے، وقت پر نماز پڑھنے میں سستی کرتی ہے، بہانے بناتی ہے اور دنیا کے کاموں کو عبادت پر ترجیح دیتی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز چھوڑنے سے بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسری وہ عورت ہے جس کی زبان لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے، جو غیبت، چغلی، جھوٹ، تانا اور فتنہ پھیلانے میں مشغول رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ زیادہ تر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایسی عورت کی عبادت کھوکھلی ہو جاتی ہے اور اس کی دعاؤں میں اثر کم ہو جاتا ہے۔ چوتھی وہ عورت ہے جو تکبر اور گھمنڈ میں جیتی ہے، اپنی خوبصورتی، مال یا حیثیت پر اتراتی ہے، غریبوں اور سادی عورتوں کو حقیر سمجھتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ گھمنڈ اللہ کی چادر ہے اور جو انسان اسے اوڑھتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ پانچویں وہ عورت ہے جو حیا اور پردے کو مذاق سمجھتی ہے، جان بوجھ کر جسم کی نمائش کرتی ہے، غیر مردوں کو لبھانے کے لیے سجتی ہے اور حیا کو پچھڑا پن کہتی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور جس دل سے حیا نکل جاتی ہے وہاں سے رحمت بھی اٹھنے لگتی ہے۔ چھٹی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، ہر وقت شکایت کرتی ہے، اچھائیوں کو بھول جاتی ہے اور تھوڑی سی تکلیف پر ساری نعمتوں کا انکار کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتیں دیکھیں، وجہ پوچھی گئی تو فرمایا شوہر کی ناشکری۔ ایسی ناشکری گھر کی برکت کھا جاتی ہے اور رشتوں میں کڑواہٹ بھر دیتی ہے۔ ساتویں وہ عورت ہے جو ریاکاری کرتی ہے، دکھاوے کی عبادت کرتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنتی ہے لیکن دل اللہ سے خالی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ آٹھویں وہ عورت ہے جو ظلم کرتی ہے، کسی کا حق مارتی ہے، کمزوروں کو دباتی ہے، بچوں یا بہوؤں پر ستم کرتی ہے، کیونکہ اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈراتا ہے۔ نویں وہ عورت ہے جو گناہ کو گناہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے، بار بار نافرمانی کر کے کہتی ہے اب کیا فرق پڑتا ہے۔ یہی سب سے خطرناک حال ہے، کیونکہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے مگر توبہ نہ کرنے والے سے ناراض رہتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر وہی عورت ٹوٹے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے، رات کے سناٹے میں سجدے میں گر جائے، شرمندگی کے آنسو بہائے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ اسے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھک لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عورتوں سے نفرت نہیں کرتا، اللہ نفرت کرتا ہے گناہ سے اور اللہ محبت کرتا ہے لوٹ آنے والوں سے۔ اگر یہ باتیں کسی کے دل کو چبھ جائے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ دروازہ آج بھی کھلا ہے اور جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کی رحمت سے امید باقی ہے۔ بہت سی عورتیں انجانے میں ایسے اعمال کر بیٹھتی ہیں جنہیں وہ گناہ ہی نہیں سمجھتیں، اور یہیں سے اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتی ہے۔ 10ویں وہ عورت ہے جو دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ آخرت کو بھول جاتی ہے۔ ہر وقت دکھاوا، فیشن اور لوگوں کی تعریف اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے، جبکہ قرآن یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور جو عورت اللہ کو بھول کر دنیا کو سب کچھ بنا لیتی ہے اللہ اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہے۔ 11ویں وہ عورت ہے جو رشتوں کو توڑتی ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہے، ساس سسر سے سختی سے پیش آتی ہے، بہنوں اور بھابھیوں کے دل دکھاتی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایسی عورت کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جاتی ہیں۔
12ਵੀं वो औरत है जो औलाद की तरबियत से गाफिल हो जाती है, बच्चों को दीन से दूर रखती है, उन्हें नमाज और हया की तालीम नहीं देती, बल्कि उन्हें सिर्फ दुनिया कमाने की मशीन बनाना चाहती है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। 13वीं वो औरत है जो हसद और जलन में जलती रहती है, दूसरों की नेमतों को देखकर खुश होने के बजाय जलती है और चाहती है कि जो उसके पास नहीं वो किसी और के पास भी ना रहे। जबकि कुरान हसद को दिलों की बीमारी कहता है और ये बीमारी इंसान के नेक आमाल को आग की तरह जला देती है। 14वीं वो औरत है जो सब्र को कमज़ोरी समझती है, मुश्किल आते ही शिकायतें करने लगती है, अल्लाह से बदगुमानी पाल लेती है, कहती है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, जबकि कुरान कहता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और सब्र के बिना रहमत के दरवाजे नहीं खुलते। 15वीं वो औरत है जो गैर मर्दों से बेहद मेलजोल रखती है, बातों में नरमी और हदाओं में लचक लाती है, दिलों को फिसलाने का सबब बनती है, जबकि कुरान ने साफ हुक्म दिया कि बात में नरमी ना करो ताकि दिलों में बीमारी रखने वाला लालच ना करे। 16वीं वो औरत है जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करती, सेहत, घर, औलाद और रोज़ी मिलने के बावजूद हर वक्त कमी ही देखती है, जबकि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, और जो नाशुक्री करता है वो खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। 17वीं वो औरत है जो मजलूम को देखकर भी खामोश रहती है, जुल्म का साथ देती है या अपने फ़ायदे के लिए सच्चाई छुपा लेती है, जबकि अल्लाह इंसाफ पसंद करता है और जालिमों को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। 18वीं वो औरत है जो मौत को भूल कर जीती है, कब्र और हिसाब को याद नहीं करती, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को ज़्यादा याद किया करो, क्योंकि मौत की याद दिल को सीधा रखती है। 19वीं वो औरत है जो दीन की बातों का मजाक उड़ाती है, नसीहत सुनकर हंस देती है, पर्दा और इबादत करने वाली औरतों को पिछड़ा कहती है, जबकि कुरान चेतावनी देता है कि अल्लाह और उसकी आयतों का मजाक उड़ाने वाले ईमान से बाहर हो जाते हैं। 20वीं वो औरत है जो गुनाह पर गर्व करती है, अपनी नाफरमानी को खुलकर बयान करती है और दूसरों को भी उसी राह पर चलने के लिए उकसाती है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के सब लोग माफ़ हो सकते हैं सिवाय उन लोगों के जो खुलेआम गुनाह करते हैं। इन सब बातों के बाद ये बात फिर दोहराना ज़रूरी है कि अल्लाह इन औरतों से भी नफ़रत नहीं करता, बल्कि उनके आमाल से नाराज़ होता है, और जैसे ही वो सच्चे दिल से तौबा करती हैं अल्लाह की रहमत उनके लिए भी खुल जाती है, क्योंकि अल्लाह गफ़ूर और रहीम है और उसका दरवाज़ा तब तक खुला है जब तक जान हलक में ना पहुँच जाए, और यही इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अल्लाह की नाराज़गी का मतलब हमेशा तबाही नहीं होता, बल्कि कई बार ये नाराज़गी बंदे को जगाने के लिए होती है ताकि वो वापस पलट आए। 21वीं वो औरत है जो अल्लाह की तरफ से आने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देती है, बार बार नुकसान उठाने के बावजूद सबक नहीं लेती, टूटे रिश्ते, बिगड़ी सेहत और दिल का सुकून छिन जाने को भी महज इत्तेफाक समझती है, जबकि हकीकत यह है कि ये सब अल्लाह की तरफ से झंझोड़ने के इशारे होते हैं। 22वीं वो औरत है जो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालती है, कभी ससुराल को कसूरवार ठहराती है, कभी हालात को, कभी किस्मत को, लेकिन कभी अपने नफ्स को नहीं टटोलती, जबकि कुरान कहता है कि इंसान पर जो मुसीबत आती है वो उसके अपने हाथों की कमाई से आती है। 23वीं वो औरत है जो नेक औरतों को देखकर जलती है, दीन पर चलने वालों से चिढ़ती है और कहती है कि ये सब दिखावा है, जबकि दरअसल उसका दिल खुद खाली होता है और दिल की इसी खालीपन की वजह से वो दूसरों की रोशनी से परेशान होती है। 24वीं वो औरत है जो दुआ को आखिरी सहारा नहीं बल्कि आखिरी औपचारिकता समझती है, दिल से नहीं बस लफ्ज़ों से मांगती है, और जब फ़ौरन जवाब नहीं मिलता तो मायूस होकर दुआ छोड़ देती है, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत की रूह है और अल्लाह देर करता है मगर इनकार नहीं करता। 25वीं वो औरत है जो अल्लाह की रहमत को छोटा समझती है, अपने आप को इतना गुनाहगार मान लेती है कि तौबा ही छोड़ देती है, कहती है अब मेरे लिए क्या माफ़ी, जबकि कुरान साफ कहता है कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। 26वीं वो औरत है जो अपने दिल को सख्त बना लेती है, ना रोती है, ना झुकती है, ना अल्लाह के सामने टूटती है, जबकि दिल का पिघलना ही हिदायत की पहली निशानी है। 27वीं वो औरत है जो नेकी को टालती रहती है, कहती है बाद में तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में दीनदार बनेंगे, जबकि मौत का वक्त कोई नहीं जानता और कब्र का पहला सवाल ही इंसान को बेनकाब कर देता है। 28वीं वो औरत है जो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं रहती, हर वक्त शिकायत करती है कि मुझे ही क्यों आजमाया गया, जबकि कुरान कहता है कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिन्हें वो चाहता है। 29वीं वो औरत है जो अपने दर्द को अल्लाह के सामने रखने के बजाय हर किसी के सामने रोती है मगर सजदे में नहीं झुकती, जबकि असली सुकून सजदे में ही रखा गया है। 30वीं वो औरत है जो ये भूल जाती है कि वो भी किसी दिन मिट्टी में मिल जानी है, उसका जिस्म, उसकी खूबसूरती, उसका घमंड सब यहीं रह जाएगा और सिर्फ आमाल साथ जाएंगे।
लेकिन इन सारी बातों के बाद भी अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता। यही इस दीन की सबसे बड़ी रहमत है। जैसे ही कोई औरत अपने गुनाहों को मान ले, शर्मिंदगी से सिर झुका ले और एक सच्ची आह अल्लाह के सामने भर दे, तो वही अल्लाह जो नाराज़ था वही रहमान बन जाता है, वही गुनाहों को नेकियों से बदल देता है, वही टूटे दिल को जोड़ देता है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह किन औरतों से नाराज़ होता है। ये जानना डराने के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है, ताकि हर बहन अपने आप को टटोले और अगर कहीं कमी दिखे तो आज ही लौट आए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, और जो आज लौट आया वही कामयाब हो गया। और आखिर में बस यही बात दिल में बिठा लो, अल्लाह औरतों से नफरत नहीं करता, अल्लाह नफरत करता है गुनाह से, और अल्लाह मोहब्बत करता है उस बंदी से जो रोते हुए उसके दर पर आ गिरती है। और जब बंदी एक कदम चलकर आती है तो अल्लाह 10 कदम चलकर उसे थाम लेता है। अल्लाह की नाराज़गी की तरफ तो नहीं बढ़ रही। 31वीं वो औरत है जिसके दिल से कुरान की कशिश ख़त्म हो जाती है। आयत सुनकर दिल नहीं हिलता, नसीहत बोझ लगती है और दीन की बातें भारी महसूस होती हैं, जबकि ये दिल के सख्त हो जाने की साफ अलामत है। 32वीं वो औरत है जिसे गुनाह करते वक्त डर नहीं लगता बल्कि पकड़े जाने का डर होता है, अल्लाह का नहीं। जबकि मोमिन की पहचान यही है कि वो तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है। 33वीं वो औरत है जिसकी ज़िंदगी से बरकत उठ जाती है। सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं रहता। घर है मगर चैन नहीं, रिश्ता है मगर मोहब्बत नहीं, दुआ है मगर असर नहीं, क्योंकि जब गुनाह बढ़ते हैं तो बरकत उठ जाती है। 34वीं वो औरत है जिसे बार बार सही रास्ता दिखाया जाता है, मगर वो हर दफ़ा कोई ना कोई दलील बनाकर मुंह मोड़ लेती है, कभी समाज का बहाना, कभी मजबूरी का, जबकि हिदायत उसी को मिलती है जो झुकने को तैयार हो। 35वीं वो औरत है जो अपने आप को हमेशा सही समझती है, नसीहत देने वाले को जज करने लगती है और कहती है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, जबकि यही सोच इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। 36वीं वो औरत है जो इबादत को बोझ समझती है और गुनाह को हल्का, जबकि असल तराजू इसके उलट होना चाहिए। 37वीं वो औरत है जो अल्लाह से शिकायत तो बहुत करती है मगर अल्लाह से बात नहीं करती, सजदे में दिल खोलकर कुछ नहीं कहती, जबकि अल्लाह अपने बंदे की आह सुनने को तैयार रहता है। 38वीं वो औरत है जो हर दुख का इलाज लोगों की बातों में ढूंढती है मगर अल्लाह के जिक्र में नहीं, जबकि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। 39वीं वो औरत है जो अपने गुनाहों को छोटा समझती जाती है और धीरे धीरे वही गुनाह उसकी आदत बन जाते हैं, जबकि छोटे गुनाहों पर अड़े रहना बड़े गुनाहों का दरवाज़ा खोल देता है। 40वीं वो औरत है जो ये सोचकर बेफिक्र हो जाती है कि अल्लाह गफूर है, इसलिए जो चाहो करो, जबकि अल्लाह गफूर होने के साथ साथ शदीदुल इताब भी है। इन सब निशानियों का मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि जगाना है, ताकि हर बहन अपने दिल से पूछ सके कि वो किस रास्ते पर चल रही है, क्योंकि अल्लाह की नाराज़गी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि सज़ा मिलती है, बल्कि ये है कि दिल से अल्लाह की याद निकलने लगती है, और जब दिल ही खाली हो जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज़ उसे भर नहीं सकती। लेकिन अगर किसी भी लम्हे दिल में ये एहसास जाग जाए कि मुझे लौटना है, तो समझ लो वही लम्हा अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, क्योंकि अल्लाह उसी को लौटने की तौफीक देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी सांसें चल रही हैं, अभी भी सजदा मुमकिन है, और अभी भी अल्लाह वही है जो एक टूटे दिल वाली औरत को फरिश्तों से ज़्यादा अजीज रखता है। बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, बाकी रास्ता वो खुद आसान कर देगा। अल्लाह की नाराज़गी जब बढ़ती है तो इंसान के अंदर कौन कौन से रूहानी बदलाव पैदा होते हैं, ताकि हर औरत खुद को वक्त रहते संभाल सके। 41वीं वो औरत है जिसे सही और गलत में फ़र्क नज़र आना बंद हो जाता है, जो हर चीज़ को हालात का नाम देकर जायज़ ठहराने लगती है, जबकि ये दिल के अंधा हो जाने की अलामत है। 42वीं वो औरत है जो नेकी करने वालों को देखकर तंज करती है और कहती है ये सब ड्रामा है, जबकि असल में उसका दिल खुद नेकी से खाली होता है। 43वीं वो औरत है जो अल्लाह की दी हुई आज़ादी को सरकशी में बदल देती है और कहती है मैं जो चाहूँ करूँ, मेरी ज़िंदगी है, जबकि बंदगी का मतलब ही खुद को अल्लाह के हवाले करना है। 44वीं वो औरत है जो गुनाह छोड़ने की नीयत तो करती है मगर उस माहौल को नहीं छोड़ती जो उसे गुनाह तक ले जाता है, जबकि हिदायत उसी को मिलती है जो रास्ता भी बदलने को तैयार हो। 45वीं वो औरत है जो अपनी नाफरमानी पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे अपना स्टाइल बना लेती है और कहती है मैं ऐसी ही हूँ, जबकि ये जुमला अक्सर शैतान सिखाता है। 46वीं वो औरत है जो अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत पालती है, सालों पुरानी रंजिशें रखती है, माफ़ करना कमज़ोरी समझती है, जबकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। 47वीं वो औरत है जो अपने दर्द को अल्लाह के सामने बयान करने के बजाय उसे गुस्से में बदल देती है और वही गुस्सा उसके रिश्तों को जला देता है। 48वीं वो औरत है जो अपनी ज़िंदगी से सब्र को निकाल देती है, हर बात पर जल्दबाजी करती है और अल्लाह के फैसलों का इंतज़ार नहीं कर पाती।
जबकि सब्र ही वो चाबी है जिससे रहमत के ताले खुलते हैं। 49वीं वो औरत है जो अपने ऊपर होने वाली छोटी सी नेमत को भी अल्लाह की तरफ से नहीं समझती, बल्कि अपनी अक्ल और कोशिश का नतीजा मान लेती है, जबकि ये सोच शुक्र को मार देती है। 50वीं वो औरत है जो हर बार गिरने के बाद उठने की उम्मीद छोड़ देती है और कहती है मुझसे अब नहीं होगा, जबकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा वही बंदी पसंद है जो बार बार गिरकर भी उसी के दर पर लौट आती है। इन सारी बातों के बाद फिर वही सच्चाई सामने आती है कि अल्लाह की नाराज़गी का दरवाज़ा बंद नहीं बल्कि चेतावनी का दरवाज़ा होता है, ताकि बंदी रुक जाए, संभल जाए और लौट आए, क्योंकि अगर अल्लाह न चाहता तो वो चेतावनी भी ना देता। इसीलिए अगर आज ये बातें पढ़कर दिल में हल्की सी भी बेचैनी पैदा हो रही है तो समझ लो यही बेचैनी हिदायत की पहली सीढ़ी है, और यही वो लम्हा है जब एक औरत अपने रब की सबसे ज़्यादा करीब हो सकती है। बस एक सच्ची आह, एक सच्ची तौबा और एक सच्चा सजदा चाहिए, क्योंकि अल्लाह आज भी वही है जो एक आंसू को 7 आसमानों से ऊपर उठा लेता है और एक झुके हुए सिर को कभी खाली नहीं लौटाता।